Okay. Okay. So let's start the Newton's law of gravitation. Okay. तो न्यूटन ने क्या किया बेटा कि ग्रेविटेशन इज बेसिकली द फोर्स बिटवीन टू masses and this force depends on the mass and the distance between the bodies which having the mass. So basically according to Newton's law of gravitation, what we have according to the Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation, the attraction force, between two masses is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between the masses. Let's understand that कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा बेटा तो उसके पास मास होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मास होगा तो वो क्या करेगा बेटा, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा तो उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा हमारे पास में, वो होगा उनके प्रोडक्ट के मास के प्रोडक्ट के बराबर एंड मास के प्रोडक्ट के बराबर। ओके चलो ठीक है बेटा, समझ में आया। देखो क्या हुआ कि अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, consider the masses are m1 and m2. m2 are separated at a distance small r, right? And the force between the masses is F that। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि सपोज अगर डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सिंपली हमारे पास दिस इज द मास m1 एंड दिस इज मास m2 and the distance between the centers of these masses is small r। समझ आएगी तो बात? ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोनों मासेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ट्राई करेंगे बेटा। तो अट्रैक्ट करने की ट्राई करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे बेटा, फोर्स अप्लाई करेंगे एंड दैट फोर्स इज F। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two masses is directly proportional to the product of the masses. Then we can say that F is directly proportional to the product of the masses, which is m1 and m2, and inversely proportional to the square of the distance between the masses. Then we can say that F is proportional to 1 by r square. Yes or no, beta? Yes. Yes. Now what we can say
that from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, we can say that F is proportional to M1, M2 divided by R square. Yes or no, beta? And we know when we remove the proportionality sign, then we use a constant, and here that constant is G, M1, M2 divided by R square. Yes or no, beta? सर वो जी क्या है? बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर जो है बेटा, ये जी जो है, सारा जो खेल है वो इसी जी का है, ठीक है. All the quantities depends on this g. Because of this g we cannot attract each other. जैसे हमारे पास भी मास है बेटा, मेरे पास भी मास है, आपके पास भी मास है, मेरे अराउंड इतने हेवनली बॉडीज है कि जैसे मेरे पास रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, सॉरी हाँ फ्रिज है, टीवी है, मासेस सबके हैं बेटा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बट ये दोनों सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या? बताओ क्यों नहीं कर पाते अट्रैक्ट? बिकॉज ऑफ दिस जी. यस, बिकॉज ऑफ दिस जी. यहाँ पर क्या होगा कि ये जी होता है बेटा, जी को बोला जाता है हियर, जी इज द proportionality constant, proportionality constant which is known as universal gravitational constant. And why it is called universal gravitational constant? Because this constant does not depend on any other quantity present in the atmosphere, in the space, in the galaxy, in the world. Yes or no? That's why it is called universal gravitational constant. Everywhere its value is constant and which is fixed. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes. Yes. Universal क्यों बोला गया बेटा? Once? बेटा मैं लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी, अभी आप समझ लीजिए. देखो यूनिवर्सल क्यों बोला गया बेटा? बिकॉज इट डज नॉट चेंज विद मीडियम, विद प्लैनेट, विद गैलेक्सी और विद यूनिवर्स. Okay, that's why it is called the universal gravitational constant. Yes or no, beta? Yes. Yes, sir. And the next important question is the value of G is the value of G is अब देखो यहाँ पर ऐसा यूनिट सिस्टम और सीजीएस यूनिट सिस्टम बेटा दोनों में हम फॉलो करेंगे. तो यहाँ से जी की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा? देखो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होगा कि नहीं होगा? बताओ बेटा. Yes, sir. होगा बेटा. एंड हो गया. इन एसआई यूनिट हमारे पास में क्या होगा? एसआई यूनिट में जो जी की वैल्यूज होंगे बेटा वो हमारे पास होंगी 6 पॉइंट, एसआई यूनिट जी इज इक्वल टू हमारे पास होगा बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. यूनिट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो बेटा. देखो unit of force is Newton, distance is meter square divided by unit of mass is kilogram square. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes. And in CGS system, in CGS unit of G is 6.67 into 10⁻⁻8 9 centimeter square per gram square. Yes or no, beta?
Yes. Yes. Okay. First note it down. Yes, sir. Then we will move on. Suppose question number 1. Calculate the force of gravitation between two masses of कितना मास लेना चाहते हो बेटा आपके अकॉर्डिंग? 100 kg ले लें? Certainly. Yes. 100 kg and 500 kg. Okay. Okay. Which are डिस्टेंस कितना लेना चाहते हो बताओ? Sir, 100. 100. अच्छा ऐसे यूनिट में लिया है तो 100 मीटर अपार्ट. ठीक है बेटा, समझ में आई बात? Yes. Yes. अच्छा अब देखो बेटा, Yes, sir. यहाँ पर सिंपल सा अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? फॉर्मूला क्या कहता है? चलो पहले तो वैल्यूज F is equals to m1 इज इक्वल टू G 100 kg बेटा, m2 इज इक्वल टू कितना है बताओ मुझे? 500 kg. 500 kg and the distance between them is 100 meter. Meters. Yes or no? Then force of gravitation is given by F is equal to G m1 m2 divided by r square, R and square. the value of G is 6.67 into 10 raised to power minus 11 multiplied by mass of m1 which is 100 kg multiplied by mass of m2 which is 500 kg and divided by distance square, then 100 multiplied by 100. Yes or no beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, And sir. then F is equal to 6.67 into यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 10 raised to 100 power could be minus cancelled. 11, 10 raised to power minus 4 into 5 लिख सकता हूँ बेटा मैं. देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, Yes, डिवाइड sir. बाय 10 raised to power 4 कर सकता हूँ मैं. 10 raised to power 4 से 10 Yes. raised to power 4 कैंसिल हो गया. देन यहाँ पर देखो मुझे बेटा फोर्स की वैल्यू कितनी मिली, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 30 and 33, 5 6 जा 30 and 33, तो 33.35 into 10 raised to power minus 11 मीटर. ओहो इतना बड़ा फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स है बेटा, बहुत सर. बहुत बड़ा फोर्स है ना, अगर माइनस दिया है. बहुत बड़ा फोर्स है. देखो यहाँ पर F इज नहीं, इक्वल नहीं. टू 10 raised to power minus 11 है बेटा. माइनस 11 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? प्लस 11 हो जाएगा. +11. प्लस 11 को मैं ऐसे लिखता हूँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके बेटा. अच्छा मुझे बताओ ये फोर्स जो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 0. कैसे सर? हाँ बेटा 33 को डिवाइड करो. सर वो 0 कुछ 0 0 33 divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 11. 0.00000 ऐसा कुछ तो आएगा सर. हाँ 0.00000 बहुत लंबा चलते जाएंगे लास्ट है में ना. 333. हाँ तो ऐसे देखो इस फोर्स को तो मैं ऐसे लिखूँ बेटा, इसको ऐसे लिखता हूँ 0.00000000000, इतना तो नहीं जाएगा, इतना नहीं जाएगा. तो यहाँ पे 1 ले लो है ना, 1 2 3 जो भी आप लेना चाहो 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा मुझे बताओ ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है कि बहुत छोटी क्वांटिटी है बताओ बेटा? बहुत बहुत छोटी है. छोटी. बहुत छोटी क्वांटिटी है. तो वी कैन टेक इट अप्रोक्सीमेटली 0 बेटा. यस और नो? यस. एंड इन जनरल देखो कितना मास लिया था बेटा मैंने? 500 kg. और ये कितना था बेटा? 100 kg है ना. 100 किलोग्राम एंड 500 किलोग्राम. अब इनका मास क्या बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा है. जब बेटा जब मास इतना बड़ा है, उनके बीच में इतना सा फोर्स लग रहा है, तो मुझे बताओ ये दोनों मार्कर मेरे पास है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा?
अचिंदी। नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल, कोई फोर्स नहीं हाँ होगा। सर। इसीलिए जनरल लाइफ में आप लोग इस फोर्स को फील नहीं कर पाते हो। यस और नो? तो फोर्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन द मासेस, बट द फोर्स इज वेरी वीक एंड इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड द डिस्टेंस। यस, बट हेवनली बॉडीज जो हमारे पास होती है जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इन द सेंस, जैसे अर्थ और मून की बात करें बेटा, अर्थ एंड सन की बात करें, तो इनके केसेस में क्या होगा कि फोर्स हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस होता है एंड उसका फोर्स हम फील कर सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड मून मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ और इन अ इलेक्ट्रिकल। यस और नो बेटा? रीजन मिला है? Yes. ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो भी रोल है बेटा वो सिर्फ किसका है? जी की वजह से, बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 into 10 raised to power minus 11. That's why the force between small masses is very weak and we cannot feel it